So students, we are studying projectile motion and we are studying projectile motion in a plane. What is projectile? Projectile is an object that is in flight in air after being thrown or projected. Examples, you have football, cricket ball, baseball, or any other object. Now, this object is in air and I need to locate it at different instant of time. So I need to take x and y axis. So when I take x and y axis, what do you get, students? That is very important. You get path. You get the path of object. Like actual path traveled. Now the important thing is that this projectile, you can assume an object projected with velocity v naught. So you can call it v naught or you can call it u, it is the same thing. Okay. So naught means time. So v naught means velocity at time t equals to 0. Okay. What is theta naught? Angle at time t equals to 0. So this naught means t equals to 0. So whenever this naught comes, it means it is telling you the time. Okay. So this v naught, you can we say it u. So u and v naught is the same thing. So we will use u. Okay. Now this is your xy plane and an object is being projected. So I want to find out the velocity with which it is projected. Draw a tangent and you get the initial velocity. Okay. And this is the magnitude, this length is the magnitude of initial velocity. Now, we have to study this motion as two separate motions. What are the two separate motions? Two separate motion. One is along x-axis and another is along y-axis. So students, you have studied motion in a straight line, right? So all the formulas of motion in a straight line will apply because I am taking the motion along x-axis. So all the formulas like v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square minus u square is equals to 2x. So 2s. How these are going to apply over here? So v velocity along x-axis is equals to initial velocity along x-axis plus the acceleration along x-axis. Time is same. So how I am going to write this along y-axis, this same equation? Vy, velocity, final velocity along y-axis, initial velocity along y-axis, plus acceleration along y-axis. Now, s is equal to ut plus half at square. So distance traveled along x-axis can be taken as x. So x is equals to uxt plus half ax t square.
I'm going to write it here. Y is equals to this along y axis is equals to uyt plus half ayt square. Now the third equation, v square x minus u square x is equals to 2ax. Similarly here, v square y. So x is the subscript, okay? Then u y square is equals to 2a. See here also it will be x, ax and ay. Is this clear, students? Yes, sir. So now you have to find the values of what is ux, okay? So what are the values of ux? Because ux से कहानी शुरू आपकी, तो ux आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ux की वैल्यू क्या है. देखो ये आपका u था. अब let us make a rectangle. ठीक है, ये आपने डायगोनल मान लिया, ये u का मैग्नीट्यूड और ये हो गया आपका रेक्टेंगल. ठीक है, अब रेक्टेंगल में ये जो लेंथ थी ये कितनी है आपकी u, ये वेक्टर था आपका, और ये क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड u. वेक्टर क्या एक डायरेक्टेड लाइन है, ये एक लाइन है सिंपल, इट इज ए लाइन. लेकिन इस लाइन की अगर मैं डायरेक्शन भी बना दूं जैसे इस तरफ ये, ठीक है, या इस तरफ, तो बस ये डायरेक्टेड, ये लाइन आपकी सिर्फ लाइन है ये, और ये क्या डायरेक्टेड लाइन बस. तो डायरेक्टेड लाइन को भी मैं कहता हूं वेक्टर, मतलब ए लाइन विद डायरेक्शन इज वेक्टर. समझ में आ गया? तो जैसे लाइन की क्या होता है, लाइन का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये क्या है 3 सेंटीमीटर इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो ड्रॉ उतना ही करेंगे हम, लेंथ उतनी ड्रॉ करेंगे जितनी u की लेंथ होती है, तो लेंथ उतनी ड्रॉ की. एक स्केल ले लिया हमने कि भाई 1 मीटर पर सेकंड को मैं लिखूंगा 1 सेंटीमीटर, तो ये आपकी टोटल लेंथ है सपोज 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर पर सेकंड. समझ गए? तो ये कितनी लेंथ ड्रॉ करोगे आप यहाँ 7 सेंटीमीटर की डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करोगे, और इस डायरेक्शन में जा रही है. इज दिस क्लियर? तो ये हो गया आपका एंगल थीटा. अब आप मुझे ये बताओ कि दिस इज एंगल थीटा and this hypotenuse is your u, so what are these two sides in terms of u? Correct. नहीं देखो, in terms of u and theta लिखना है ना आपको इसे. Yes, sir. साइन थीटा क्या होता है? देखो हमने फॉर्मूला किया था, आपने ये किया है O by H. हाँ O by H, ठीक है. हमने किया ओपन एडम, ओपन हरी हरी एडम, और ये आप करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये आप करते आए हैं, लेकिन मैंने बताया था कि ये फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला क्या है ये. तो साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ऑपोजिट साइड क्या होगी स्टूडेंट्स? हाइपोटेन्यूज साइन थीटा. तो ये साइड होगी हमेशा हाइपोटेन्यूज साइन थीटा. क्या होगी ये? Hypotenuse sin theta. हाइपोटेन्यूज साइन थीटा. और ये साइड क्या होगी हमेशा? कॉस थीटा. क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा. तो ये साइड होगी हमेशा हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा. इज दिस क्लियर? Yes, 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 sir. अब आप हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो यहां लिख दो, तो ये क्या हो जाएगी? यू साइन थीटा, ये लेंथ, और ये लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? बोलो भाई, हाइपोटेन्यूज क्या आपका यू है ना? Yes, sir. U. तो मुझे बताओ एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस वेलोसिटी का?
ये लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर ये लेंथ यू है तो ये लेंथ कितनी हो गई? यू कॉस थीटा। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? रेक्टेंगल है तो जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये भी है। यस, टू तो साइन आ गई बात समझ में? थीटा। तो यू एक्स क्या निकला आपका? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू कॉस थीटा। हाँ या ना? यस सर, यस सर। एंड इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या निकली आपकी? टू साइन थीटा। हाँ, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम। चलो, तो आपका u तो आपको पता लग गया, ठीक है। अब आपको किसी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको निकालनी है वेलोसिटी, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक्सेलरेशन, हाँ या ना? यस सर। और एक्सेलरेशन कहां से आता है? फोर्स से। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इनटू, एक्सेलरेशन। एग्रीड और नॉट एग्रीड? फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। बस सीधी सी बात है, जो आपको फॉर्मूले पता है इधर एक्स लिख दो और इधर क्या लिख दो? उनका सबस्क्रिप्ट वाई लिख दो। कोई प्रॉब्लम है? नो। जब ऑब्जेक्ट एयर में होता है स्टूडेंट्स तो एफ एक्स हमेशा जीरो होता है। क्या क्या होता है? एफ एक्स जीरो। कोई फोर्स नहीं लग रही हॉरिजॉन्टली उसके ऊपर। जब जब ऑब्जेक्ट एयर में है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है और वो है एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उसमें एक्सेलरेशन होगा जी, यानी कि एम जी, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, सिर्फ और सिर्फ हर जगह एक ही फोर्स, एंड दैट इज डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इज दिस क्लियर? यस सर। तो एफ एक्स तो जीरो आपकी, तो मास इंटू ए एक्स, तो ए एक्स क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका? जीरो। जीरो। यानी एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन इज जीरो। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन निकालते हैं, क्या है? एफ वाई इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, यही है ना आपका? यस। तो डेट इज एम इंटू ए वाई। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका? ए वाई इज इक्वल्स टू जी, जी है ना आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी निकल गई इन एक्स डायरेक्शन, आपकी इनिशियल वेलोसिटी निकल गई इन वाई डायरेक्शन। निकल गई नहीं निकल गई? तो क्या अब आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो? फॉर्मूला नंबर 1, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स। यू एक्स कितना है? यू कोस साइन थीटा। नहीं नहीं नहीं, यू कॉस थीटा। तो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स कितना है? जीरो इंटू टी, जीरो। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, क्योंकि फोर्स क्या है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्योंकि एफ एक्स जीरो है तो इसीलिए एक्सेलरेशन भी जीरो था और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वो हमेशा हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगी। समझ में आ गई बात? तो यूनिफॉर्म मोशन इज देयर अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये क्या होगा? यू कॉस थीटा। चलो, और वी वाई क्या होगा स्टूडेंट्स? यू वाई प्लस, अरे बोलो, प्लस आएगा प्लस जी या माइनस जी? यहां पर ये दोबारा देखना एक बार, प्लस जी आएगा या माइनस जी? आपने अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लिया? यू साइन थीटा को, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया आपने, ये डायरेक्शन भी क्या ली? पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो इसका मतलब यहां पर जो ये फोर्स लग रही है, ये कैसी फोर्स थी आपकी? डाउनवर्ड फोर्स, हाँ या ना? तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या थी? नेगेटिव। माइनस जी आ जाएगा ना आपका? तो ए वाई इक्वल्स टू माइनस जी। ए वाई किसके इक्वल है? माइनस। जी। तो स्टूडेंट्स यू वाई क्या हो जाएगा?
यू वाई इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू यू वाई, इसमें वैल्यू पुट करो ना। यू वाई क्या है, यू वाई चलो यू साइन थीटा है, ए वाई किसके इक्वल है, माइनस जी इंटू, हो गया क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ तो नोट करते जाओ इस साथ से। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट फार्मूला आ गया आपका। अब अगला 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 फार्मूला बताओ मुझे। एक्स, एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, किसी भी आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम टी में, वो आपका एक्स है। तो एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स, यू एक्स हमें पता है यू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू टी प्लस एक्सेलरेशन कितना ए एक्स, माइनस जी। नहीं 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 ए एक्स, जीरो। तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। यस सर। तो क्या आ गया आपका, प्लस जीरो। प्लस जीरो, तो आपका रह गया एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। चलो अब यहां आ जाओ, y इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी, जी माइनस माइनस होगा ना, ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी है टी स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो बॉल एक ही है लेकिन दोनों मोशन बिल्कुल क्या है, सेपरेट। ओके, एक हाँ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट सभी का। चलो अब अगला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, उसको भी आप लिख सकते हो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। यस सर। यस सर। अब हम यहां जिस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हम लेते हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारी रेंज। ठीक है, कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया यहां से और यहां गिर गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये आपकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी। हमने इसके दो कंपोनेंट लिखे, एक ये था एंगल आपका थीटा मान लो, तो ये आ गया आपका कंपोनेंट u, क्या आया cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या आया था, यू साइन थीटा। u sin थीटा। कितनी आसान बात है। हम जो इंटरेस्ट रहता है, एक तो हमें इंटरेस्ट रहता है कि भैया कितनी हाइट पर जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, है कि नहीं, और दूसरा जो हम इंटरेस्ट हमें रहता है वो रहता है रेंज में, कि ये कितनी दूर जाकर गिरेगा, यहां से ये ओरिजिन था, ओरिजिन से कितनी दूर जाकर गिरेगा, तो दिस इज योर रेंज। दूसरी बात टाइम ऑफ द फ्लाइट, कितना टाइम लगा, कितनी देर वो एयर में रहा, ये तीन चीजों में इंटरेस्ट है कि नहीं आपका, बताओ। यस सर। और एक यहां तक कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, t/2। अगर ये टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट t है, तो यहां तक टाइम कितना हो जाएगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, t/2। तो हम इन तीन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, r h और t, ठीक है कि नहीं। अच्छा अच्छा एक बात था, मुझे h पर क्या खास बात होगी, h पर खास बात क्या होगी, आपकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो होगी या नहीं होगी वी वाई, बताओ मुझे। ऐसे जीरो। ठीक है, तो अगर हम यहां पर इस इक्वेशन में जो आपकी वी वाई की वैल्यू है, अगर इसमें हम जीरो लिख दें, तो हमें टाइम ऑफ द फ्लाइट हाफ ऑफ द टाइम पता लग जाएगा, लग जाएगा। यस बेटा, आपने एक बॉल को ऐसे थ्रो किया, सीधा थ्रो कर दो, बॉल को सीधा थ्रो करते हो तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो, फिर बॉल आना शुरू कर देती है नीचे। यस सर। अब जब ये मैक्सिमम हाइट है, समझ रहे हैं, तो उससे ऊपर तो बॉल जा ही नहीं रही ना आपकी, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो।
अगर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो ऊपर जाती, वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जा रही है, 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 कम होती जा रही है। देखो यहां पर जो है आपका जो एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये यहाँ टेंजेंट बनाओ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, जीरो। तो इसका मतलब यू साइन जीरो, यू साइन जीरो मीन जीरो, है कि नहीं। Yes, sir. तो मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी आपकी, मैक्सिमम हाइट एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि उससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो गई। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही है, फिक्स है वो तो, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू कॉस थीटा, वो तो हर जगह लास्ट तक यू कॉस थीटा ही रहेगी, क्योंकि एफ एक्स क्या है, जीरो है, Zero. और ए एक्स क्या हो गया, जीरो। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होगी, तो यू एक्स आपका यही रहेगा, वी एक्स भी यही है और यू एक्स भी यही है। ओके Yes, sir. चलो अब यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया कि भाई वी वाई जीरो हो जाता है, तो स्टूडेंट्स तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी, और यहाँ ये क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो टाइम ऑफ द फ्लाइट का क्या हो गया, ये हाफ, हाँ या ना। Yes, yes. तो हाँ, तो टी एम लिख लो, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इसको टी बाई टू को क्या लिख सकते हो आप, टी एम, टाइम टू रीच मैक्सिमम, ठीक है। तो टीएम की वैल्यू, तो टीएम की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो जी टी एम इज इक्वल्स टू यू वाई, और टी एम इज इक्वल्स टू, U y divided by G. क्लियर हो गई बात। Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है। No, sir. No, sir. अच्छा अब आपको देखो ये टाइम पता लग गया, अब आप हाइट निकाल लो, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, वो किससे निकलेगी, वाई से। भाई ये टाइम, इस टाइम पर वो कितनी हाइट पर था, ये पुट कर दो यहां पर, हाँ या ना। Yes, sir. तो y की जगह क्या लिख दूं मैं, इस टाइम पर y की जगह क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट, हाइट h, ठीक है कि नहीं, कैपिटल H। तो कितना हो गया, h इज इक्वल्स टू यू वाई, टी कितना है आपका, U u y divided by G. माइनस 1/2 जी T square. इंटू यू वाई स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी यही है ना, यू वाई बाय जी, यही है या नहीं है। और आप यहां इससे एक जी काट दो, ऊपर, सॉरी ये है ना जी यहां पर, तो एक जी कट गया आपका, एक जी रह गया, तो क्या आ गया अब यू बाय जी, यू वाई बाय, ये भी यू स्क्वायर बाय जी है, ये भी यू स्क्वायर बाय जी है, अगर इसको आप x मान लो तो ये भी तो x ही है, तो x माइनस एक्स बाय टू कितना होता है, Zero. अरे x माइनस एक्स बाय टू, एक्स बाय टू होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. भाई एक होल में से हाफ घटा दोगे तो हाफ बच गया ना, Yes, sir. Yes, sir. यू स्क्वायर वाई बाय जी, हाँ या ना। Yes, sir. Sir. अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप सिंपल एग्जांपल ले लो, क्योंकि ये सेपरेट मोशन है, आपने सिंपल एग्जांपल लिया, आपने बॉल ऊपर थ्रो की विद वेलोसिटी यू वाई, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। No, sir. Sir. तो आप मुझे बताओ, ये आपका फॉर्मूला था वी एक्स इज इक्वल्स टू यू वाई
माइनस जी टी। तो मुझे बताना स्टूडेंट्स, यहां पर हमने निकाला था टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, वी वाई क्या हो जाएगा ऊपर जाके 0 है ना, ये वाई गलती से मैंने एक्स लिख दिया, अरे वी वाई 0 हो जाएगा ना बस, along y एक्सिस मैक्सिमम हाइट पे जाकर, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आ गया 0 इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, और ये क्या टी, क्या टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट, तो ये यही तो आ गया आपका टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू यू वाई अपॉन जी। कोई नया फॉर्मूला थोड़ी निकाला आपने स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. यू बाई जी, और मुझे हाइट बता दो मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, उसी फार्मूले से सेम फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैक्सिमम हाइट एच, बिल्कुल सेम, बिल्कुल यही का यही फार्मूला, तो यही वैल्यू आएगी बिल्कुल सेम टू सेम। देखो कोई डिफरेंस है, No, sir. No, sir. सर वो 1/2 का आ गया, -1/2। बेटे ये आप इसमें से x कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1/2 बच गया अंदर, यस सर। अब ठीक है यस सर। भाई, एक सेब थी, आधी आपने काट दी तो कितनी बच गई, आधी सेब, ओके सर। आधी आप खा गई काट कर, तो सब्ट्रैक्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स आप ये बताओ दोनों चीजें सेम है या नहीं है, यस सर। यस सर। सिर्फ डिफरेंस एक ही है, और इसमें यहां पर वो है यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, यहां पर भी वही है यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। यहां थीटा कितना है स्टूडेंट्स, अरे थीटा लॉन्ग एक्स एक्सिस होता है ना, तो थीटा कितना है यहाँ 90 डिग्री, तो यू साइन 90 डिग्री, यू साइन 90 कितना होता है 1, तो यू वाई की वैल्यू यहाँ क्या है यू, यू यू। क्योंकि ये यू साइन 90। डन, यस सर। यस सर। तो चलो अब एक्स एक्सिस पे आ जाओ, तो आपने मैक्सिमम हाइट निकाल ली और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, जो कि कुछ भी नहीं है, तो याद रखना सीधा u बाई जी, और ये क्या है मैक्सिमम हाइट कितनी है यू स्क्वायर बाय जी। तो टाइम मैक्सिमम कितना आया था आपका, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट u बाय जी, यू वाई बाय जी। देखो ये सही फार्मूला है गलत फार्मूला, चलो चेक करते हैं। u की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, g की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, नीचे क्या बच गया 1/s-1, दैट इज s, दैट इज द यूनिट ऑफ टाइम। सही फार्मूला या नहीं, h की देखो यूनिट ठीक है नहीं, u स्क्वायर बाय g, यानी कि m स्क्वायर s-2 डिवाइडेड बाय ms-2, s-2 से s-2 कैंसिल, एक m से एक m कट गया, क्या बच गया मीटर। ये बात समझ आई आपको, फार्मूला कैसे चेक करते हैं, हो गया क्लियर। यस सर। चलो अब रेंज कितनी होगी, रेंज इज इक्वल्स टू, भाई रेंज मतलब x इज इक्वल्स टू क्या है यू एक्स टी, यू एक्स इंटू टी कितना आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा टीएम का डबल, अरे हाँ या ना, बस ये आपकी रेंज आ गई, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, नो सर। तो आपने सीधा x इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, तो t था, आप जब रेंज लिखेंगे x की जगह, रेंज अगर आपकी
तो रेंज है तो टाइम ऑफ द फ्लाइट, टाइम ऑफ द फ्लाइट क्या है, जो t/2 था, तो t इज इक्वल टू tm इंटू 2, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट तक था उसी टाइम को डबल कर दो, तो मैक्सिमम हाइट तक था आपका uy/g, तो उसको डबल कर दिया, बस रेंज आ गई। अरे बन गई बात। यस सर। और टाइम ऑफ द फ्लाइट कितना आ गया आपका, यही 2u। डिवाइडेड बाय जी। बताओ कुछ है मुश्किल इसके अंदर? नो सर। चलो तो सारे फॉर्मूले याद हो गए? यस सर। चलो तो फटाफट बिल्कुल। v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी, बॉल को ऊपर थ्रो किया आपने, ठीक है, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट ये 0, t इज इक्वल्स टू u बाय जी। यू बाय जी। क्लियर? यस सर। उसके बाद s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यस सर। तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू u इंटू टाइम मैक्सिमम u बाय जी माइनस g इंटू यू बाय यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आपका क्या बन गया, एक जी से एक जी कट गया, ये यू स्क्वायर बाय जी अरे हाफ भूल गए क्या, तो यू स्क्वायर बाय जी माइनस हाफ यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी। तो हाइट कितनी आ गई, हाफ यू स्क्वायर बाय जी, या यू स्क्वायर बाय 2g। हाँ तुमने कहा था ना हाफ कहाँ चला गया, बिल्कुल ठीक है, तुम हाफ तो आएगा बेटे, बहुत अच्छी बात कही थी आपने, यहाँ मुझे अब ध्यान आया, आपने हाफ कहा था, हाफ तो आएगा, हाफ कहाँ जा सकता है ना, ये हाफ तो आएगा, क्यों नहीं आएगा ये हाफ, ठीक है ना, यस सर। यस सर। हाफ तो आएगा बेटे, क्यों नहीं आएगा। दूसरे तरीके से निकाल लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, यस सर। यहां से निकाल लो, ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका, t की वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं है आपको, तो v0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल। माइनस से माइनस कैंसिल, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g लो, और आसान लो तीसरी इक्वेशन से, ये वाली आसान थी सर। ये आसान है, तो चलो ऐसे कर लो फिर, जो आपको आसान लगे वैसे कर लो। अब सिर्फ इसको हमें अगर y की फॉर्म में लिखना है, ये y की तो फॉर्म है वर्टिकल मोशन, सिर्फ अब y लिख देते हैं, u की जगह क्या लिख देते हैं uy, बस बात खत्म हो गई, और h की जगह y लिख देते हैं, ठीक है, तो टाइम मैक्सिमम इज इक्वल्स टू uy अपॉन g, हाइट मैक्सिमम इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर अपॉन 2g, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हो गया आपका अलोंग एक्स वाई एक्सिस, बस इसी को आपने बस u की जगह uy लिख दिया, और uy आपको पता है किसके इक्वल है uy, u साइन थीटा, आपको पता है यहां पर uy इज इक्वल टू u साइन 90 डिग्री है, और साइन 90 कितना होता है 1, तो इसलिए यहां पर uy की जगह आप क्या लिख रहे हो, सिर्फ वर्टिकल मोशन में u, इज दिस क्लियर। यस सर। अब एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाओ, एक्स एक्सिस के अलोंग ux है, और ux क्या होता है u cos थीटा, तो हम रेंज की बात कर रहे थे, है ना, तो ये आपको पता है कि जो ax है वो 0 है, इसीलिए क्योंकि fx 0 था, इसीलिए जो
इनिशियल वेलोसिटी है ux, ये सेम ही रहती है यहां पर भी और यहां, ठीक है, यहां पर भी ux ही रहती है। तो रेंज क्या हो जाएगी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ ax क्या आपका 0, तो ये तो खत्म हो गया ना। यस सर। तो इसलिए रेंज r इज इक्वल्स टू ux इंटू टी। टी क्या है, टाइम ऑफ द फ्लाइट, वो क्या है इसका डबल, यस सर। तो 2uy अपॉन जी। है कोई दिक्कत, नो सर। तो रेंज आ गई आपकी 2 इंटू ux इंटू uy अपॉन जी, ठीक है। और टाइम, टाइम ऑफ द फ्लाइट, इसको 2 से अभी आपने मल्टीप्लाई किया ही था, तो टाइम ऑफ द फ्लाइट क्या आ गई आपकी 2u बाय जी। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले क्या हमें इनको कुछ क्रैम करने की जरूरत है, रटने की जरूरत है क्या इनको, डन हो गया ये। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। A hiker stands on, you need the question, ओरली बोलने से बात नहीं बनेगी। चलिए तो क्वेश्चन इज, ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ, और कितनी हाइट है उसकी 490 मीटर्स, ठीक है। ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर above the ground and throws a stone horizontally, मैं कितनी हाइट पर हूं 490 मीटर। 490 मीटर, और यहां से मैंने हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि ux कितना, ux 15 मीटर पर सेकंड से मैंने थ्रो कर दिया स्टोन। uy कितना है 0, क्योंकि स्टोन कैसे थ्रो किया है मैंने, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड ही तो होगी बेटा। यस सर। एयर रेजिस्टेंस 0 है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, तो कितनी देर में आपका ये स्टोन ग्राउंड पर पहुंचेगा ये आपको बताना है, ठीक है। यस सर। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये फॉर्मूले हैं आपके सामने, टाइम जो है, जितना टाइम में ये वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने ही टाइम में हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करेगा। तो यहां पर भी आपने वर्टिकल पहले निकाला था ना, तो वर्टिकल डिस्टेंस 490 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा इसे बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है। S इज इक्वल्स टू ut, इस बार डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, ये डाउनवर्ड मोशन है, तो S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो S कितना 490, u कितना है 15 मीटर पर सेकंड। नहीं नहीं, ये ux है, ये uy है, y है ना ये तो 0। यस सर। 0, तो क्या बचा हाफ इंटू जी कितना है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो कितना आ गया टाइम आपका
ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई जाएगा, तो 490 मल्टीप्लाई 2, और ये 9.8 आके इधर है डिवाइड, तो ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो कितना बन गया बताओ, 49 टू द 98, 49 वन द, अब ये 2 वन द 2, कितना है स्टूडेंट्स टाइम, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेकेंड, तो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, बस। तो यानी कि 10 सेकेंड तक वो ट्रेवल करेगा। तो बताओ मुझे फिर कितना आसान है। तो रेंज कितनी आ गई, ux इंटू टाइम ऑफ द फ्लाइट, और टाइम ऑफ द फ्लाइट क्या आपकी अभी आपने निकाला 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक एयर में है ना। यस सर। तो कितना आ गया 15 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 150 मीटर, यानी कि उसने हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है 150 मीटर। डन। समझ गए स्टूडेंट्स। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं बड़ा मजेदार क्वेश्चन बनाता हूं, इसी क्वेश्चन को बड़ा मजेदार, वो कैसे बनेगा सर, देखो ये एक थीफ है, और ये थीफ यहां से भाग रहा है टक टक टक, और इसके पीछे जो है वो, अब थीफ है तो उसके पीछे कौन होगा, पुलिस, पुलिस, तो ये पुलिस, ये थीफ, और आगे जाकर आ गई गली, क्या आ गई, हाँ ठीक है, और उसके उधर उसे एक और रूफ है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 140 मीटर, कितना 140 मीटर, और यहां से ये जो रूफ है अगला, अगली उसकी हाइट है 110 मीटर, और जहां से वो जंप कर रहा है वो है 600 मीटर, ठीक है। और यहां से थीफ ने छलांग लगा दी 15 मीटर पर सेकंड, तो वो गली में गिरेगा या यहां बिल्डिंग पर, बताओ क्या वो बिल्डिंग तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। ये हाइट थी 600 मीटर। स्टूडेंट्स ये रियलिस्टिक एग्जांपल नहीं है, क्योंकि 600 मीटर से हाइट इतनी ऊंची ना कोई बिल्डिंग है ना कोई जंप लगाएगा 110 पे, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आता है उसमें ये सिर्फ कम हो जाते हैं, 600 की जगह 60 कर दो, ठीक है, और इसको इसको आप 10 कर दो, इसको आप 4 मीटर कर दो, तो लेकिन सिचुएशन आप समझ गए ना। यस। तो बताओ ये थीफ क्या इसे जंप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये यहां पहुंच पाएगा या गली में गिर जाएगा। यही तो है जो क्वेश्चन अभी आपने किया है, 15 मीटर पर सेकंड से वो हॉरिजॉन्टली जितना उसे वर्टिकल में टाइम लगेगा, आप देखो उसे वर्टिकल है यहाँ पे आपका वही 490 मीटर, क्योंकि ये 110 है और ये 600 है, तो कितना बचा 400, तो 490 मीटर वर्टिकल ट्रेवल करेगा वो। तो पहले आपको वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, अब वर्टिकल डिस्टेंस पता लग गया, तो वर्टिकल डिस्टेंस के बाद आपको पता लग जाएगा टाइम, टाइम ऑफ द कितना टाइम लगेगा, और टाइम आपने निकाल लिया 10 सेकंड। अब वो 10 सेकंड तक हवा में है, 10 सेकंड तक हवा में है, तो वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 150 मीटर। तो यानी कि वो इस गली को क्रॉस कर जाएगा, यानी उसे कूद जाना चाहिए, तो बच जाएगा। अब बेचारे पुलिस को, ये पुलिस इतना जो है वो यहाँ यहाँ पहुंचेगी, अब पुलिस अगर इतनी स्पीड जो है वो मेंटेन नहीं कर पाती, थीफ में थोड़ा दिमाग ज्यादा था, तो पुलिस वाला जो है नहीं नहीं छोड़ दो, मैं जो है मतलब कहीं मैं गली में ना गिर जाऊं, तो इस तरीके से उसे 15 मीटर पर सेकंड से ज्यादा भाग के आना पड़ेगा पीछे से, नहीं खड़े होकर जंप लगा दो, नहीं पीछे भाग के दर 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 ऐसे भाग के 15 मीटर पर सेकंड स्पीड बन गई तब जंप। आई बात समझ में, जब वो ऐसे भाग के आएगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड ही होगी ना, वर्टिकल तो नहीं होगी ना। यस सर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कितना मजेदार एग्जांपल था ये। यस सर। चलो
तो स्टूडेंट्स अब एक अगला क्वेश्चन है, हालांकि इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और था कि उसकी स्पीड कितनी होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो चलो उसको भी निकाल लेते हैं, जब ग्राउंड को हिट करेगा तो स्पीड कितनी होगी। चलो तो स्टूडेंट्स वर्टिकल स्पीड कितनी होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, तो वी वाई इज इक्वल्स टू, नहीं 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 नहीं, जीरो नहीं होगी भाई, यू वाई जीरो थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। इस बार यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड मोशन सीधा, तो डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है ना, मोशन ऑफ डायरेक्शन को डाउनवर्ड है पॉजिटिव, तो जी भी क्या हो गया पॉजिटिव, इसीलिए u प्लस जी टी। हाँ या ना? तो स्टूडेंट साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे आपको कुछ भी रटना ना पड़े, ठीक है। चलो तो यू वाई हो गया आपका क्या, अरे यू वाई क्या हो गया, जीरो हो गया ना भाई, ठीक है। यहाँ कोई है ना, इनिशियल वर्टिकल स्पीड तो जीरो थी, तो बच गया क्या सिर्फ जी टी, और जी कितना है 9.8 इंटू कितनी देर तक था हवा में, तो कितना आ गया 98 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी, हाँ ये आ गई आपकी वर्टिकल स्पीड। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होगी, वो तो बेटे 15 ही रहेगी ना, क्योंकि क्यों क्यों कैसे रहेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ए एक्स क्या है जीरो, क्योंकि एफ एक्स जीरो है। जब फ्लाइट में है, एयर में है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होती है, तो क्या आ गया वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, यू एक्स कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, याद रहेगी अब ये बात। तो आप मुझे बताओ, आपकी वर्टिकल स्पीड तो है 98, हॉरिजॉन्टल आपकी 15 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने का तरीका क्या, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ये आ गया आपका रिजल्ट, आ गया ना, कितना आया ये, अरे भाई ये 98, ये 15, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अंडर द रूट 98 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, यस और नो। देखो 98 में ये 98 स्क्वायर है ना, तो इसमें अगर आपको 99 का स्क्वायर बनाना है तो कितना ऐड करोगे, मुझे ये बता दो बस। 98 स्क्वायर का मतलब क्या है, सम ऑफ 98 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 98 ऑड नंबर्स का सम है ये 98 स्क्वायर। याद आया कुछ, ये 1 स्क्वायर क्या है 1, 2 स्क्वायर क्या है 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 यानी कि 4, 3 स्क्वायर क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 9। याद आया कुछ, तो 3 ऑड नंबर्स का सम 3 का स्क्वायर, 2 ऑड नंबर्स का सम 2 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट 98 ऑड नंबर्स ऐड कर दो, सम ऑफ फर्स्ट 98 और 99 स्क्वायर क्या होगा, सम ऑफ बस अब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल गई है। तो अब मुझे बताओ ये क्या होगा फिर, यहां पर क्या लिखूंगा, क्या ऐड करूंगा मैं 98 के स्क्वायर में कि वो 99 का स्क्वायर बन जाए, अरे 99 तो ऑड नंबर ऐड करूंगा ना मैं, यस और नो। और 99th ऑड नंबर क्या होता है, 99th इवन नंबर -1, यानी कि 99 मल्टीप्लाई 2 198 -1 197, यानी कि 197 ऐड करूंगा मैं तो 99 का स्क्वायर बनेगा। अब ये 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 197 से थोड़ा ज्यादा ऐड कर रहा हूं, ठीक है।
अगर इसे 100 का स्क्वायर बनाना होता तो मुझे इसमें 100th ऑड नंबर ऐड करना पड़ता, यानी कि 199 और ऐड करना पड़ता, वो तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। कितना कितना ऐड करना पड़ता, 396, जबकि मैं ऐड कितना कर रहा हूं, सिर्फ 225। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 99 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 या 2। क्लियर, बन गई बात। Yes, sir. तो इस तरीके से आपको लॉजिकली कैलकुलेशंस करनी है। तो स्टूडेंट्स आपकी जो स्पीड आई, अब आपको 15 आपकी स्पीड थी एक्स डायरेक्शन में, 98 आपकी स्पीड थी वाई डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी आई, 99.2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Thank you, sir.